Good morning, students. So, continuing with previous lecture, in which we covered the growth and development of agricultural sector from 1947 to 1990. So, today we are going to discuss about the growth and development of industry from 1947, that is the year when we got independence, till 1990. Right. So, first of all, we will be discussing about the role and importance of industry. So industry plays a very important role in context of growth and development of our country. So how can we say that? There are certain points which make the importance of industry very much clear, and these are: number one, industry is the epicenter of economic growth. बेटे किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट जब हमें करनी है तो उसमें आउटपुट जो है दैट इज द रिजल्ट ऑफ थ्री मेन सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. राइट. So as the economy goes on developing, the importance of industry or the contribution of the industrial sector towards GDP should go on increasing. ठीक है. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की आउटपुट अगर बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी टुवर्ड्स आउटपुट, इट वुड ब्रिंग अबाउट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी. ठीक है. पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या था? प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा टुवर्ड्स जीडीपी. बट नाउ ग्रेजुअली एज द इकोनॉमी स्टार्ट्स डेवलपिंग, इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ. ठीक है. जिस तरह से ग्रोथ ट्रेन का एक इंजन होता है जो कि ट्रेन को आगे की तरफ लेके जाता है, उसी तरह से इकोनॉमी का जो इंजन, यानी कि इकोनॉमी को जो आगे लेके जाता है, ठीक है, एक्सेलरेट करता है उसकी ग्रोथ को. अर्लियर इट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है. लेकिन धीरे धीरे हमें जब जैसे जैसे समझ आती गई, जैसे कि फर्स्ट 5-year plan was basically confined to growth of agriculture sector. So when we achieved self sufficiency, now the focus shifted towards the industrial sector. Now we realized that industry should replace agriculture as an engine of growth. क्योंकि बेटे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट इज कंफाइंड टू द प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड्स and raw material for industrial sector, whereas industrial sector is very vast. It produces consumer goods which we people consume. Now you are very much clear about the concept of consumer and capital goods, right? So I will not be repeating it. Consumer goods which are consumed by the households for the direct satisfaction of the wants, as well as capital goods which are required by the producers for the production of capital goods. So lot of varieties there industrial good की, इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बेटे वो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है. सेकंड बेटे, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है दैट इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अर्लियर आपने देखा कि मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन थी दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है. उस जिसके करके हमारे लैंड के ऊपर एक्सेसिव बर्डन बढ़ गया पॉपुलेशन का. ठीक है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन kept on depending upon the same piece of land. So this led to various problems like pressure of population on land, like disguised unemployment. In order to solve these problems, we required alternative sources of employment. So बेटे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की सरप्लस लेबर है, now it can be shifted on to the industrial sector. क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तो जिस करके हम एग्रीकल्चर के सरप्लस लेबर को इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है. So that so which means that it is a source of employment for the economy. Then bete next point of importance, that it is a source of mechanized means of farming.
So yesterday we covered that government of India focused on scientific means of cultivation, due to which agricultural productivity as well as agricultural production increased many folds, right? Now, who is providing you with these mechanized means of farming? कहां से आ रहा है ट्रैक्टर, कहां से आ रहा है केमिकल फर्टिलाइजर, कहां से आ रहे हैं थ्रेशर्स, कहां से आ रहे हैं हार्वेस्टर्स? ये कौन प्रोड्यूस करता है? दीज आर प्रोड्यूस्ड इन दी इंडस्ट्री. सो बेटे अगर इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगी तो एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं करेगी. ये दोनों सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट है. एक्चुअली इंटरडिपेंडेंस इज द रूल ऑफ द इकोनॉमी. एवरीथिंग एंड एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द अदर थिंग. एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री ग्रो करती है. इंडस्ट्री इनपुट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो एग्रीकल्चर ग्रो करती है. ठीक है. सो फार्मिंग में मैकेनाइजेशन कौन लेके आया? इंडस्ट्री लेके आई. और इस मैकेनाइजेशन के कारण आज हम अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिला पा रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है food grain from other countries. In this way we are saving our foreign exchange reserves. Next bete, it imparts dynamism to the growth process. Now focus on the word dynamism. Bete now is the time to increase or enlarge your vocabulary. Even though you can write it in your own language, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, बट नाउ इज द टाइम जब आपको फोकस करना चाहिए अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने में. ठीक है. बिजनेस की टर्म्स समझने में और उनको डेली लाइफ में यूज करने का यही टाइम है. ठीक है. तो डायनेमिज्म इज ऑपोजिट टू स्टैटिक. स्टैटिक सबको पता है क्या होता है, स्टेगनेंट, स्टिल. ठीक है. तो ग्रोथ प्रोसेस बेटे, अगर हमारी इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था, एग्रीकल्चर सेक्टर मेन कंट्रीब्यूटर था जीडीपी में. ठीक है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना को ग्रो कर सकता है? आप कितने को गुड्स एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ा लेंगे और लोग, ऐसा तो नहीं है लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोग ज्यादा खाना पीना शुरू कर देंगे. Does it happen? No. But जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, do they start consuming more industrial goods or not? Yes. How many of you are in favor of my statement कि as income increases, people do not consume more of agricultural goods, but they consume more of industrial goods? Yes. Anyone? You agree? Raise your hands if you agree with me. Okay. Only 2 students agree that yes, as the income of people increase. Yes. Okay. Now I am getting response from others as well. People will start consuming more of industrial good. ठीक है बेटे. आप देखो इंडस्ट्री कितनी एक्सपैंड. पहले मोबाइल्स नहीं होते थे, अब मोबाइल्स आ गए. आपकी इनकम बढ़ेगी, आप बेटर मॉडल ले लोगे मोबाइल का, आप मोबाइल के साथ ब्लूटूथ डिवाइस ले लोगे, है ना, आप लैपटॉप ले लोगे, फिर आप लैपटॉप को का कवर ले लोगे, आप लैपटॉप के साथ और एक्सेसरीज ले लोगे. ऐसा होता है ना. मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो है वो इनकम के बढ़ने के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो इससे एक कंज्यूमरिज्म की वेव पूरी कंट्री में आ गई है. Consumerism means we are consuming variety of goods and services. We are spending our income on the purchase of goods and services. आप मूवी देखने चले जाओगे, आपके पास आपकी इनकम 20,000 थी तो आप महीने में एक बारी मूवी देखने जाते थे. आपकी इनकम 40,000 हो गई तो आप 2 बारी मूवी देखने चले जाओगे. आपकी इनकम 60,000 हो गई तो आप मूवी देखने के साथ साथ वहां पे पॉपकॉर्न्स और कोल्ड ड्रिंक भी ले लोगे. ठीक है. आपकी इनकम और बढ़ गई तो आप मूवी के बाद रेस्टोरेंट में चले जाओगे, आप बड़ी कार ले लोगे, आप कार को कस्टमाइज करवा लोगे. सो देयर इज एंडलेस कंजम्पशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसके करके क्या होगा बेटे, ग्रोथ प्रोसेस रुकेगा नहीं. इसको एक सेल्फ प्रोपेलिंग चेंज आ जाएगा इकोनॉमी में.
इकोनॉमी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम और बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड फिर से बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाएगी। सो एक सेल्फ प्रोपेलिंग चेंज इकोनॉमी में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ डायनामिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे सिविलाइजेशन की ग्रोथ। पीपल दे आर नाउ मोर कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे वर्क हार्ड टू अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। तो इससे जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज मर्जिंग इनटू अ वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, तो बेटे जो अर्बनाइजेशन है that comes due to industrialization। ठीक है, it is the result of industrialization। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बेटे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है, किसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर? These are the basic facilities which are required for the development of agriculture, industry and other sectors of the economy। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए कुछ बेसिक फैसिलिटीज, कुछ बेसिक सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, ये सारी जो बेटे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं, ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती हैं। और जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप करती है, इट रिक्वायर्स मोर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ये दोनों तरफ एरो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री डेवलप होती है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जैसे बेटे ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो हमें ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो विच मीन्स इंडस्ट्री would lead, expansion of industry would lead to the expansion of infrastructure। so किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बेस है। सो ग्रोथ ऑफ वन, लास्ट लाइन देखो, ग्रोथ ऑफ वन एस्केलेट्स द ग्रोथ ऑफ अदर। मतलब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ इंडस्ट्री की ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, इंडस्ट्री की ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने में हेल्प करती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज बेटे इंडस्ट्रियलाइजेशन अ सिने क्यू नॉन ऑफ ग्रोथ। सिने क्यू नॉन, क्यू यू ओ होना चाहिए यहाँ पे। सिने क्यू नॉन मीन्स इट इज एन असेंशियल कंडीशन। ठीक है, इट इज अ प्री रेक्विजिट। किसी भी चीज, जैसे आपको कल को बीकॉम में जाना है तो आपके लिए +2 कॉमर्स इज अ प्री रेक्विजिट। ठीक है, तो इसी तरह बेटे अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़े, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, प्री रेक्विजिट है। ऐसी कोई भी कंट्री आप वर्ल्ड में देख लो, डेवलप्ड कंट्री, जो सिर्फ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी हो। एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड इकोनॉमीज कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, अगर किसी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ या इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ बढ़ रहा है, ओनली देन दैट इकोनॉमी कैन अटेन डेवलपमेंट। ठीक है, सो विच मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एन इनएविटेबल रूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एनीवन, एनी डाउट? Okay, so next bete, let us see the development strategies followed by the Indian government since independence। Independence जब हमने अटेन की 1947 में, तो उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लीडर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की। बेटे ये आपको मैंने बार बार बताया और हमेशा माइंड में रखना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेसिकली गांधीयन प्लान था, इट फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज नेहरूियन मॉडल प्लान। ठीक है, एंड इट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, सो लेट अस सी द वेरियस, यू कैन राइट इट डाउन।
डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, पॉइंट्स लिख लीजिए। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज सिंस इंडिपेंडेंस, एमसीक्यू में आ सकता है आपको, ठीक है। सो नंबर 1, पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आवर गवर्नमेंट, इट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इस पॉलिसी में बेटे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, they were supposed to play complementary role in the task of industrial and economic development. मिलजुल के ये दोनों सेक्टर्स काम करेंगे अपनी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के कंधों पर इंडस्ट्री का भार छोड़ देना फीजिबल ऑप्शन नहीं था। तो हमने कहा दोनों सेक्टर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, दैट इज दे वुड प्ले अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल for the industrial growth and the economic growth of the country. So first point of strategy for the industrial sector was policy of mixed economy. Second, expansion of public sector. I will be asking questions in between bete, ठीक है? So do write it down. Expansion of public sector. Public sector कौन सा होता है? Which is owned and managed by the government, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे रेलवे को छोड़ के बेटे पब्लिक सेक्टर में और कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है। सो ऐसा माना गया कि गवर्नमेंट शुड प्रोग्रेसिवली एज्यूम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द टास्क ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर के कंधों पे छोड़ना पॉसिबल नहीं था। प्राइवेट सेक्टर में टाटा, बिरला, ये 2-3 बड़े बिजनेस हाउसेस के नाम के अलावा और किसी के पास कैपिटल नहीं थी, ठीक है। सो इट वाज अज्यूम्ड दैट गवर्नमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड किया गया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई, यानी ये इंडस्ट्री सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही सेटअप कर सकता था। प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले ओनली अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या थे मैंने आपको बता दिया। एक, देयर वाज लैक ऑफ प्राइवेट कैपिटल। इसके नीचे सब पॉइंट्स लिख सकते हो। पब्लिक सेक्टर क्यों एक्सपैंड किया गया? देयर वाज लैक ऑफ प्राइवेट कैपिटल। देन देयर वाज लैक ऑफ इंसेंटिव। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को कहते भी हैं कि भाई आप ये वाली इंडस्ट्री खोलो, आप ट्रांसपोर्टेशन में एंटर करो, आप रोड्स बनाओ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग जाएगी, लेकिन रिटर्न जो है दैट विल कम आफ्टर मेनी इयर्स, ठीक है। ये जो ह्यूज बड़े बड़े टास्क होते हैं बेटे, इनमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन इनका जो फ्रूट है ना वो बहुत लेट आना शुरू होता है। जैसे आज पेड़ लगाया, ठीक है, आज सीड सो किया, आम का पेड़ लगाया, 8 सालों बाद वो आपको फल देना शुरू करेगा। 8 सालों तक आपको उसके ऊपर पैसे डालने पड़ेंगे अपनी तरफ से। इसको बोलते हैं जेस्टेशन लैग और फ्रूशन लैग। व्हाट इज जेस्टेशन लैग? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? आज इन्वेस्टमेंट की, 8 सालों बाद इसकी रिटर्न आनी शुरू हुई, प्रॉफिट आने शुरू हुए, इसको, इस गैप को कहते हैं जेस्टेशन लैग, फ्रूशन लैग भी कह देते हैं, ठीक है। तो जब जेस्टेशन लैग इतना ज्यादा रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सो इसीलिए पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमने फोकस किया। तीसरा, हम चाहते थे हमारी इकोनॉमी सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर ग्रो करे। हम चाहते थे रिच रिचर ना हो, हम वी वांटेड दैट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी लेसन्ड। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को फोकस करते, प्राइवेट सेक्टर आ जाता जिसमें गिने चुने 4-5 बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, वो इन्वेस्ट करते, तो क्या होता, रिच वुड हैव गॉटन रिचर एंड पुअर वुड हैव गॉटन पुअरर, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते थे। हमारी इकोनॉमी सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर ही डेवलप हो रही थी, जिसके चलते हमें पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करना पड़ा। सो दिस वाज अनदर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। Coming to the third,
strict regulation of private sector. कुछ इंडस्ट्रीज हमने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दी, लेकिन उनको फ्री नहीं, आजाद नहीं छोड़ा। ये नहीं कि आप बिल्कुल आजाद हो, जो मर्जी करो। सबसे पहली बात तो वो 17 इंडस्ट्रीज में से वो नई अपनी इंडस्ट्री बना सकती थी। दूसरी बात, अगर उनको कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनमें वो एंटर तो कर सकती थी, लेकिन उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, तो लाइसेंस अगर उनको पहली बात तो लाइसेंस लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, एंड व्हेन दे वुड गेट द लाइसेंस, तो उसमें जितनी प्रोडक्शन स्पेसिफाइड होती थी उससे ज्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, राइट। सो प्राइवेट सेक्टर वाज अंडर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. Another development strategy of public industrial growth followed by the government was development of small scale industries. The government of India focused on the development of small scale industry. Can you tell me the reason? Why would government focus on the development of small scale industry? Anyone? Raise your hand. But instead of writing in chat box, okay. Yes, Maulik? Okay, you mute your... हाँ जी, बोलो. To increase employment. Okay, yes. जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, that is labor intensive industry, और हमारी इकोनॉमी लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, तो हमें ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना बनता था जिससे हमारी सरप्लस लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल सके. एनी अदर पॉइंट? और क्यों स्मॉल स्केल? एक ही फैक्टर था? एनी अदर चाइल्ड, एनी अदर पॉइंट? ओके, सोशल जस्टिस, सुहानी, ठीक है. सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ? क्योंकि ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ सेटअप हो सकती हैं, ठीक है. तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ, और मोरओवर वो बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देती हैं, ठीक है. देन ओके, दे आर एट लोकल लेवल, रसिका इज सेइंग, सो द लेबर विल बी बेनिफिटेड, राइट. यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज इज आल्सो वन पॉइंट. बिल्कुल ठीक है बेटे, वेरी गुड. कीप ऑन participating in the discussion like this way. So small scale industries के ऊपर क्यों फोकस किया ये आपको पता चल गया, ठीक है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर दोबारा आएंगे. अभी के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, which is industrial policy resolution, a declaration by the government on the leading role of the state. Okay, bete, so first of all you should know what is a policy. Policy किसको बोलते हैं? I guess आपने बिजनेस स्टडीज में भी पॉलिसी का मीनिंग पढ़ा होगा. So anyone who wants to convey the meaning of policy? Okay, Tanisha and Payal, you have just entered. तनीषा, मैम मेरी लीव हो गई थी, मैंने अभी नहीं एंटर करा. ओके, व्हाट अबाउट यू तनीषा? दैट वाज पायल. मैम मेरी भी लीव हो गई थी, मैंने इसलिए दोबारा एंटर किया था. ऑलराइट. ओके बेटे, पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी बेसिकली रेफर्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट. अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी है तो इट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस established by the government, made by the government for the industrial growth of the country. ठीक है. So this is what we mean by policy. कि जो rules and regulations government frame करती है किसी भी अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो रही है, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं. बेटे, इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले पॉलिसी बनाई वो थी 1948 की पॉलिसी. नोटेड डाउन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 was the first policy made by the government for industrial sector, but that is not in our syllabus. और उसमें कुछ खास नहीं था तो इसलिए वो हमारे सिलेबस में नहीं है. उसके बाद 1956 की पॉलिसी IPR, क्योंकि हम यही स्टडी करते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये
फर्स्ट पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट ने बनाई, ऐसा नहीं है बेटे। फर्स्ट पॉलिसी इज दैट ऑफ 1948। ठीक है, उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई, दैट वाज ऑफ द पॉलिसी ऑफ 1956, IPR 1956 हम इसको शॉर्ट में कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये पॉलिसी को जब पढ़ा गया तो इससे ये पता चला कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी के द्वारा ये बताना चाह रही है कि आज से गवर्नमेंट वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तभी ऐसे कहा गया अ डेक्लेरेशन, it was a loud declaration by the government that there will be a leading role of the state here means government in the industrial development of the country। ठीक है, इस पॉलिसी में क्या था, ठीक है, और इसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। अभी के लिए और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।